آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ پہلا، خسف یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب، پشچم اور عرب میں۔ دوسرا، علم دین اٹھا لیا جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تیسرا، جہالت کی کثرت ہوگی۔ چوتھا، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ پانچواں، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ چھٹا، مال کی زیادتی ہوگی۔ ساتواں، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ آٹھواں، مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوست سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ نواں، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ 10واں، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ 11واں، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ 12واں، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ 13واں، مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ 14، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے انگوٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ 15، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسا کہ چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ 16، درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ 17، سورج پشچم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ 18، علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود انسی، سجاح، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہا اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کے کرتب۔ دجال یہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر قاف فے رو لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ مجھ کو خدا مانو، جو اسے خدا مانے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزی اگائیں گی۔ ویرانوں میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، حقیقت میں کچھ نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मीनारा पर आसमान से उतरेंगे। यह सुबह का वक्त होगा, फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक घुलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे, इससे वह वासिल जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे। जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वो आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक, दीन इस्लाम होगा, मजहब एक, मजहब अहले सुन्नत होगा। बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, आप निकाह करेंगे, औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज़ाए अनवर में मदफून होंगे। हजरत इमाम मेहदी का जाहिर होना। हजरत इमाम मेहदी हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुज्तहिद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा, अब्दाल काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी भी वहां मौजूद होंगे। उनसे बैत लेने को कहेंगे, वह इनकार करेंगे। गैब से आवाज आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम आ जाएंगे। याजूज व माजूज का निकलना। यह एक कौम है, याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे, बहार के मौसम में निकलते थे, हरी चीजें सब खा जाते, सूखी चीजों को लाद ले जाते, आदमियों को खा लेते, जंगली जानवरों सांप बिच्छू तक को चट कर जाते। हजरत जुल्करनैन ने लोहे की दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। दाबतुल अर्द का निकलना। यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कोहे सफा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा। फसाहत यानी बहुत अच्छी, सही और साफ अरबी से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। आसा से मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम और काफिर एलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी न बदलेगी। जो काफिर है हरगिज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। क़यामत किन लोगों पर आएगी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। यह चंद निशानियां बयान की गई, इनमें से बाज जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी? जब निशानियां पूरी हो जाएगी और मुसलमानों की बगलों से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी। तो इसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी की औलाद न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा, कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा। गज सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि यकायक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज हल्की होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी कोई न होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करेगा।
दोबारा फूकने का हुक्म देगा। सूर फूकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन, फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व जजा के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे, जबानें सूख कर काटा हो जाएंगी, बाजों की जबानें मुंह से बाहर निकल जाएंगी। पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा आमाल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालात में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिश तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे आका व मौला रहमत आला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करेंगे और शफाअत की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह फरमाकर बारगाह इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो शफाअत करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। मीज़ाने अमल नेकी बदी तोलने का तराजू में अमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के। अमाल पूछे जा रहे हैं, जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। न गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती हैं। इस बेकसी के वक्त में दस्तगीर मददगार बेकसा हुजूर पुर नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फरमाएंगे। शफाअत की बात सूरतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफाअत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग दोज़ख के लायक होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से दोज़ख से बच जाएंगे और जो गुनहगार मुसलमान दोज़ख में पहुंच चुके होंगे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत से दोज़ख से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफाअत करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। कौन कौन से लोग शफाअत करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, औलिया, शुहदा, हुफ्फाज, हुज्जाज भी शफाअत करेंगे। लोग उलमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिलाकर शफाअत के लिए कहेगा और वह उसकी शफाअत करेंगे। यह क़यामत का दिन जो 50,000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार व नाकाबिले बर्दाश्त होगी, यह दिन अंबिया व औलिया और सालिहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लगता है, बल्कि उससे भी कम। बाजों के लिए तो पलक झपकने से सारा दिन खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमान को उस दिन मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशाइश की कोई इंतहा नहीं, उसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोज़ख कहते हैं। जहन्नम दोज़ख हक है, इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोज़ख बन चुकी है और अब मौजूद है। यह नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएगी। क़यामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोज़ख सबके वही मायने हैं जो मुसलमानों में मशहूर है। लिहाजा जो आदमी इन चीजों को तो हक कहे मगर इनके मायने कुछ और कहे, मुसलमान यह कहे कि सवाब के मायने अपनी नेकियों को देखकर खुश होना और अजाब के मायने अपने बुरे अमल को देखकर रंज करना, यह हश्र फकत रूहों का होगा, बदन का नहीं। तो ऐसा आदमी हकीकत में इन चीजों का मुनकिर है और जो मुनकिर है वह काफिर है। क़यामत बेशक जरूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है।
हश्र रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूह उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वह भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी, उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन के आज़ा अगरचे मरने के बाद इधर उधर हो गए और जानवर के खुराक हो गए, मगर अल्लाह ताला इन सब आज़ा को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। हिसाब